the boys go to the temple for Mangalarti, and then they come to Gurukul for Japa class. So the boys they either sit here or in the new building. They'll be chanting their Japa with the teachers, and after that the boys will go for Darshanarti, which is there in the temple. Or if the day will be raining, then we'll be having Darshanarti here in Gurukul. And then after that, we will come back to Gurukul, have philosophy class, talking about Krishna stories, and sometimes we have debates about some points. And after that, we go for breakfast. And after breakfast, the boys they go for the cleaning, which they clean up after prasadam. They help the boys cleaning, and after that, the boys they go for math class. At 10 o'clock, there'll be math class, and then at 10 o'clock, the boys go for math class, and after that, they will attend. They will be after math class, there will be a Sanskrit class at 10:50, and then after that at 11, the boys at 11:50, the class finishes, and the boys go for the washing clothes period and cleaning the pumps where they wash the clothes and take a bath. And after that, the boys um, they have like 15 minutes free time if they finish the washing clothes quickly. And after that, they go for kitchen service. They clean up the cooking. After they finish cooking, they'll transfer them into equal huts, and then we'll go wash paraphernalia and then arrange the kitchen nicely. And after they're done with the kitchen service, they'll go for lunch. And after lunch, the boys have free time until 2 o'clock. They finish at 1:30, and then at 2 o'clock, they go for the cleaning. After Prashad, they go for cleaning, and after cleaning, they have little bit free time also. And then after the free time, the boys go for um, they go for their next class, which will be art class. So they learn how to draw Krishna pictures and how to just draw many other pictures, flowers, plants, and like that. And after that, after they have their art class, they have English class. And after the English class, the boys go for mantra class. And in mantra classes, we learn Yagya mantras. For some boys, they learn Yagya mantras, or they learn the basic mantras. And after that, they'll go to the higher classes. And after the mantra class, the boys will go home at 5:10, and they will spend their time with their parents. Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Thank you, Ram. Explaining it. So currently the fee structure is of 10,000 rupees per month. In this 10,000 आपका बच्चों का प्रसादम, यात्रा expenses, clothes, other basic books वगैरह जो भी basic है, everything books जो भी needed, all these things are covered. There is no separate expenses generally that they have to get unless and something comes up. And the principle that Prabhupada has always told that education should not be charged is still maintained over here. So that Lakshmi that is given by the students as fees is used for maintenance of campus and the expenses of the students only. For the teachers, there is the fundraising department that tries to raise the fund, and from that the fees are being provided. I mean the maintenance is being provided. और कोई सवाल था आपका? Eligibility. Good question. मैं भूल गया. So there are 3 fundamental criteria of Pakad. That is age group जो generally prefer हम करते हैं वो 5 और 8 के बीच में करते हैं. So younger they are, it is easier for them to adopt this lifestyle and to adopt the practicality of staying here, because technically वो पूरा दिन यहाँ पे ही निकालते हैं. So एक फर्स्ट क्राइटेरिया 5 और 8 के बीच में हम जनरली प्रेफर करते हैं.
सेकंड है माता पिता को मायापुर शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि मैं बताया शाम को सब बच्चे घर जाएंगे. And the third is that they have to be connected to some ISKCON temple, the parents, and they should be practicing Krishna consciousness for a decent amount of time. And unke basis pe, then if they are okay with these three criteria, they can put an email expressing the desire why they want their child to get enrolled in Gurukul. And then the admission head in charge, he basically goes to them and shortlist their parents का entry, and then it's final. तो ये प्रोसीजर है जनरल अपने एडमिशन. और सेवा क्वेश्चन. सवाल है क्या? अच्छा, जो यहाँ पे पढ़ाते हैं बच्चे लोग को, you can consider around 75 to 80% is covered of what is being taught out there. This is a Vedic setup, जैसे आप सबने देखा होगा. So there is no end, कि यहाँ पे as during graduation आपको कोई HSC या ऐसा कोई सर्टिफिकेट होता है. But the education system in Gurukul can be divided in three parts: primary, secondary और tertiary. Secondary level basically 15-16 साल की उम्र जो रहती है, जहाँ पे हम SSC देते हैं 10वीं बेसिकली, वो secondary education रहता है. And if the child or parents expresses the desire कि they would like to continue further in SSC or whatever board it is, so we will help them to get enrolled. यहाँ पे दो स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल हमारा एक है, और एक मेन रोड पे आपने देखा था उसके अंदर नेशनल स्कूल. So local board भी है और international board भी है. We try and get them enrolled and they can pursue their further studies. And students who want to retain here, they generally are here till 20 to 21 age. उस दौरान उनका graduation यहाँ पे हो जाता है. Now when I say graduation, I'll term it in spiritual aspects में. तो भक्ति शास्त्री उनका यहाँ पे हो जाता है. भक्ति वेदांत की पढ़ाई भी pretty much यहाँ पे हो जाती है. भक्ति वैभव की पढ़ाई भी pretty much यहाँ पे हो जाती है. When they go outside, they can immediately apply and produce that भक्ति वैभव. मतलब वहाँ तक का आपका ये हो जाता है. So academics भी हम फोकस करते हैं और साथ में स्पिरिचुअल 50-50% एटलीस्ट मिनिमम हर चीज़ में बैलेंस है. बताओ कुछ और कोई सवाल आपके? यहाँ पे क्लासेस लैंग्वेज वाइज होता है या? अच्छा, यहाँ पे क्योंकि स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं है, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड नहीं होता है. सब्जेक्ट्स होता है. तो इंग्लिश है, मैथ है, संस्कृत है, लॉजिक है, जनरल नॉलेज रहेगा, आर्ट्स रहेगा, ऑल द सब्जेक्ट रहेगा. इफ़ यू आर गुड इन वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यू कैन एक्सेल फर्दर. और जिसमें भी आप वीक हो उसमें यू कैन रिटेन एंड यू कैन कंटिन्यू. द टीचर्स विल हेल्प यू टू परस्यू दैट सब्जेक्ट. तो वैसा नहीं है कि हमारे स्कूल में जैसे हम पढ़े मैथ में फेल हो गया तो पूरा साल बर्बाद हो गया. इट्स नॉट लाइक. इफ यू आर गुड इन वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, प्रोसीड फर्दर, गो हेड फर्दर एंड बाकी का कोप अप करना. सो दैट्स द वे. सो दिस हैपन. ये क्यों प्रैक्टिस करते हैं? ताकि इससे एक नेचुरल एप्टीट्यूड और एबिलिटी जो चाइल्ड का रहता है वो बाहर आता है. वॉट एवर ही एक्सप्रेस, वॉट एवर ही लाइक्स, वॉट एवर पर्टिकुलर कोर उसका जो है, एंड अल्टीमेटली द थिंग इज दैट वॉट एवर वी आर गुड एट, वी शुड यूज इन सर्विस ऑफ that way we try to. सब हाँ, मैं जब जैसे बताया 80% पूरा कवर अप हो जाए. यहाँ के बच्चे को आगे जाके आएगा, ट्रिग्नोमेट्री भी आता है, सब आता है. बट क्या होता है, इट्स नॉट दैट जैसे हम लोग को कुछ ज़्यादा ही साइन थीटा कॉस थीटा ऐसा हो गया था. एक लिमिट में जिसका हाँ, इफ ही वांट्स टू परस्यू फर्दर देन मैनेजमेंट विल हेल्प. मतलब बेसिक लेवल है. बेसिक्स आर वेरी की. इसके बाद कहाँ जा रहे थे? 10th तक यहाँ पे किया. 10th तक यस, ही कैन जब कॉलेज में एडमिशन लेने का उसके लिए नया नहीं रहेगा कुछ. और बाहर अगर मान लो 10th यहाँ पे किया, मैं तो जैसे बोला 75-80% तो कोप अप हो गया. जो मिसिंग एस्पेक्ट है वील हेल्प यू टू कवर दैट ऑल्सो. तो टेक्निकली आप जब बाहर जाओगे तो इफ यू थिंक ऑफ एप्टीट्यूड वाइज, इंटेलिजेंस वाइज, वो पूरा लेवल में एब्सोल्युटली फाइन. भागे कॉलेज. बट द ब्यूटी ऑफ हियर इज यहाँ के बच्चे, क्योंकि वी फोकस ऑन कैरेक्टर एंड वैल्यू में, तो उसमें होता क्या है कि दे आर वेरी क्लियर ऑफ व्हाट टू डू इन लाइफ. दे नो देयर प्रायोरिटी, दे नो व्हाट टू डू. फॉर एग्जांपल अभी ये रामचंद्र है, ही इज 12 years old. ये एक्चुअली उसका फ्री टाइम है. बट व्हेन ही नोज दैट देयर आर डिवोटीज हु आर कमिंग, देन immediately we know that okay, it is my service time now, so I have to sacrifice my play time and I have to go and do this. So ये basic example आपको दूँगा. So they are very clear with what is important in life, and that particular thing they will do very well. उस हिसाब से they, in fact, they become better compared to what
यू नो आप जनरल स्कूल में भी पढ़ा रहेगा कोई बंदा एंड यू कैन मैच अप, और मान लो एक ही फील्ड में वो लोग बिजनेस या जॉब कर रहे हैं, दिस पर्सन विल बी मोर ऑर्गेनाइज बिकॉज ही इज ऑर्गेनाइज थ्रू आउट इज लाइफ फ्रॉम द चाइल्डहुड इज बिन प्रैक्टिस। तो जैसे इन्होंने कहा, आते हैं, मंगला आरती जप करते हैं, फिर सर्विसेज कुछ रहती है, फिर पढ़ाई, वो ख़त्म होने के बाद यू नो खुद का कपड़े धोना है उनको, शावर लेना है, उनका जो एरिया वो क्लीन करना है। ये सारी चीज़ें जनरल स्कूल में नहीं होती, तो ये सारी चीज़ से वो मेंटली बहुत तैयार है। हमारे जो किड है, बच्चे बेसिकली 14 ईयर्स इंचार्ज है, 14 ईयर्स का जो इंचार्ज है वो किचन का सेटअप पूरा देखता है, किचन में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, ऑफ कोर्स इन कोऑर्डिनेशन विद द टीचर, बट this is the leadership quality that you know they are practicing from a very young age. Now again another example, if I put it, this is a crowd of 35. There are times when there are 200 people also, and the same children are showing them the Gurukul. The same children are sitting also and trying to answer briefly whatever. So this way they also learn this leadership. Facing the crowd, sharing the knowledge. And all this. और कुछ और? वो वेजिटेबल्स नाइफ से क्यों नहीं करते? इनफैक्ट ये पूरे बंगाल में प्रभु यहाँ पे ये प्रथा है, that इसको क्या मोटी है ऐसा कुछ बोलते हैं। हाँ, कि that हाँ, तो पता नहीं, पर बंगाल थ्रू आउट बंगाल में यही एक प्रथा है, उसी से जनरली करते हैं। एंड आई वुड से दैट because they are Gaudiya Vaishnavas, I think they are just trying to follow what Mahaprabhu has practiced and taught us. That's the same thing. And also, I'm not very sure about it, but there is also Sattva Gun, Tamo Gun or Raju Gun effect. There is something. Or generally आते हैं. First of all, they have to be very strong in practicing of Krishna consciousness. At least 7-8 years, good amount of time. They have to have initiated. They should be initiated also. ये basic fundamental criteria. And of course, then what they bring to the group. So if there is need of something and it can be contributed for the good development of the child, then it is done. सर घर पे जाता है जब, तो उस टाइम पे लोग कैसा रहता है आफ्टर 5 o'clock? अच्छा, सो ये जो आपने सवाल पूछा ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम जनरली जो हम सब जनरल स्कूल में पढ़े, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, तो हम जाते हैं तो हमारा बैग एक ठिकाने पर रहता है और मम्मी को बोलते हैं टाटा बाय बाय, जिस बेचारे का ट्यूशन है उसको ट्यूशन भागना है, तो और वहाँ पे फिर ट्यूशन से आके स्कूल का होमवर्क करो, कुछ ना कुछ चालू है ना। उस दौरान मुझे याद है वो बोलते थे सब पेरेंट्स या टीचर, या तो ये मेंटालिटी था कि अच्छा है बिजी रहता है, बट एक्चुअली उसको बिजी नहीं बोलते, उसको खाली यहाँ के जो बच्चे हैं, when they go home, for example by 5:15 or 4:15, whenever they go home, they will, first of all, there's a very clear transparency and very good communication between the teachers and the parents of how is the behavior of the child also. And also teachers try, and it is not a classroom तक का relation, बियॉन्ड क्लासरूम जाके भी उनको हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब वेकेशन से, तो देवर टीचर्स हु आर रीचिंग आउट टू पेरेंट्स एंड आस्किंग हाउ इज सो एंड सो स्टूडेंट डूइंग दिस जपा, और इज ही डूइंग सम सर्विस, और व्हाट इज ही डूइंग, बेसिकली उसका पूरा डे कैसे चलता है। तो यहाँ के बच्चे जनरली जो घर जाते हैं, उनके पास ज़्यादा समय नहीं रहता, टू बी ऑनेस्ट। दे विल रीच होम बाय 5:15 उसके आसपास। व्हेन दे गो, बैग साइड में थोड़ा रख के, they will remove the clothes for washing whatever is pending, they will fill up their bags, then they will have little conversation or family time with the parents, whatever it can be, from going out to the temple to going to samadhi or being at home also, but there will be some आधा घंटा मैक्सिमम का डिस्कशन। उतने में 6:30 के आसपास जनरली यहाँ पे डिनर ले लेते हैं। ये बच्चे सारे 7:15 7:30 तक तो सो जाते हैं, because they have to wake up also early. So इनके लिए ये जो 1 घंटा रहता है ना, तो माता पिता एंड बच्चों के उसमें बहुत सारे स्वीट एक्सचेंजेस भी बोल दो, या तो क्या क्या हुआ, क्या कैसे हुआ, उसका एक्सपीरियंस शेयर करता है, थोड़ा माता पिता फिलोसॉफी बताएंगे, उसके वॉट एवर इट इज, उतने में उनका दिन खत्म होता है। व्हेन दे वेक अप ऑल्सो इट्स वेरी नाइस, बिकॉज
दे जो छोटे बच्चे स्पेसिफिकली वो घर पे माता पिता के साथ थोड़ा मंगला आरती करते हैं, थोड़ा जप करते हैं, थोड़ा सा फिलोसफी डिस्कस करके फिर यहाँ पे आके जप उनका कंटिन्यू करते हैं। तो ये क्या होता है, इट्स अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन द चाइल्ड एंड द पेरेंट एंड द टीचर्स एज वेल। हम सब स्कूल में खाली बोलते थे, या हमने सबने पढ़ा है, स्कूल शुड बी लाइक होम एंड होम शुड बी लाइक स्कूल, नो ऐसा हम बोलते हैं कि दोनों में फ़र्क नहीं होना चाहिए। पर वहाँ पे तो डेफिनेटली होता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। इट्स अ वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट ओवर है, क्योंकि हम सब प्रभुपाद के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, हम सब वैष्णव फिलोसफी से जुड़े हुए हैं। तो जनरल फिलोसफी, जनरल थिंग, सारी चीज़ सब सेम है, और प्लस टीचर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन गाइडिंग द चाइल्ड प्रोग्रेस, एंड पेरेंट्स ऑल्सो हैप्पीली क्या क्या हम कर सकते हैं बेटर। तो इस चीज़ में इट्स अ वेरी स्मूथ रिलेशन। जी कैसा यहाँ पर तो फ़ोन तो लोग मिलता नहीं यूज़ करने के लिए, अगर घर पर जाएंगे तो लोग फ़ोन यूज़ कर लेते हैं वहाँ पर, नहीं, ऐसा कुछ? आप देखो, आपने वीडियो शुरुआत गेम्स में सब देखा कुछ मिट्टी में खेल रहे थे, हाँ। तो आप उनको दे भी देंगे ना, तो इट इज़ नॉट एन अटैचमेंट फॉर देम। दे विल फाइंड हैप्पीनेस इवन विद अ प्लास्टिक बॉटल फ्लोटिंग ऑन वाटर। Are you trying? After some years, Even if the bigger boys also, even bigger boys. So why? Because there is no strong attachment. Now अभी कैसा है, मोबाइल एक स्पेशली जो बच्चे अभी आज के जनरेशन के जो यहाँ पे नहीं है, उनका तो अटैचमेंट मतलब strong, बहुत स्ट्रॉन्ग। खाने के टाइम मोबाइल चाहिए, सोने के पहले शायद कुछ कुछ लोगों को जैसे बड़े होते गेम भी खेलना चाहिए, वही अटैचमेंट है, आइडेंटिफाई ओनली विद दैट। बट यहाँ के बच्चे ऐसा रिलेट नहीं करते, मिला तो ठीक है, एंड दे डोंट आस्क। यहाँ पे भी टैबलेट्स वगैरह देते, बट इट्स नॉट फॉर, एंड इट्स नॉट लाइक आईपैड देते, बट वॉट एवर टैबलेट है जिसमें रीडिंग हो सकता है, जिसमें कुछ बेसिक उनका एक्टिविटीज़ है उसके रिलेटेड। सो दे हैव दिस एक्सपोजर टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट दे नो हाउ टू यूज एंड व्हाट टू यूज, एंड पेरेंट्स आर देयर, दे आल्सो हैव अ वॉच। एंड आई हैव नॉट पर्सनली फ्रॉम पास्ट 3.5 years come across any case where child is extremely attached. या ठीक है, एक आध दुखे का साथ खेलने का मन किया रहेगा और उसको समझा देगा, तो आई थिंक because it's not that they identify that is the only way of happiness. They identify way of happiness more when they are with the other devotee students who are here playing with them, participating in different activities. तो मोबाइल टेक्नोलॉजी इतना एक्सपोजर, एनीवे ऐसे भी एक्सपोजर कैसा रहता है, हर आई हर्ड फ्रॉम दिस महाराज, बेसिकली यहाँ पे उन्होंने कहा था कि हर बच्चों को दे आर वेरी क्या बोलते हैं, प्योर इन कॉन्शियसनेस। हर एक उम्र रहती है हर एक्सपोजर देने के लिए, राइट उम्र में राइट एक्सपोजर विल हेल्प देम टू एक्सेप्ट ऑल्सो एंड अडैप्ट। जल्दी हम एक्सपोजर दे देंगे तो इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट। टेम्पल में क्या क्या एक्टिविटीज़ बड़े बच्चे लोग जाते हैं जनरली, स्पेसिफिकली फेस्टिवल्स जब रहते हैं, तो यहाँ के जिनके उपनयन संस्कार हो गए, जिनको बेसिकली ग्रामीण जनेऊ जिनका हो गया, दे कैन एक्टिवली गो एंड पार्टिसिपेट इन दी ऑल्टर एक्टिविटीज ऑल्सो। और जो छोटे बच्चे हैं वो मान लो ऑल्टर के अंदर नहीं जाएंगे, बट वो जूस निकालने में या अभिषेक का कुछ प्रिपरेशंस करने में, उसमें दे कैन हेल्प, फ्लावर पेटल्स निकालना है, जूस निकालना है, तो ये सारी चीज़ों में गुरुकुल के बच्चे एक्टिव होते हैं। अगेन कार्तिक से लेकर गौर पूर्णिमा में देयर इज एलिफेंट प्रोसेशन हैपनिंग एवरी सैटरडे, तो आप जब भी आएंगे यू कैन एक्चुअली सी यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो है, दैट इज ऑल्सो गुरुकुल स्टूडेंट्स आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। तो जो भी मेजर इवेंट्स या मेजर फेस्टिवल्स गौड़ीय वैष्णव्स अपने जो रहते हैं संप्रदाय के, वो सारे में बच्चे लोग आर ऑलवेज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। ऑफ कोर्स नॉट एवरीबडी, बट जो भी इस क्राइटेरिया में फिट होता है। हॉलीडेज मेजर फेस्टिवल्स के बाद, जैसे कार्तिक का इस साल से शुरू होगा, पहले कार्तिक नहीं देते, बट पहले आई एम नॉट मिस्टेकन मई में एक रहता है 15 दिन का, और अभी फ्रॉम दिस ईयर दे आर स्टार्टेड टू बी 2 months। तो मई के दौरान, गर्मी के दौरान, गौर पूर्णिमा के बाद देयर इज नरसिम्हा चतुर्दशी के बाद देयर इज 2 months ऑफ हॉलीडे। हॉलीडे में भी प्रभु नाउ व्हाट वी आर रेफरिंग टू इज लाइक a devotee family. Now devotee family are majorly, most of them they know their routine. They have to invest time in reading, they have to do the aartis, they have to do offerings for the Lord, and certain activities, going to temple and everything. So during holidays
In fact, family together, they do the same thing. They will do Mangla Aarti at home or go to the temple. They will do some japa together or in the temple या किधर भी. But these spiritual activities are not anymore a part of life. They have become a way of life for a devotee family. So it is easily practiced also with the students and everybody collectively together. Even during vacation. There are challenges जब वो जाते हैं उनके in-laws के पास या relatives के पास. तभी थोड़ा चैलेंज होता है कि रूटीन उनका डिस्टर्ब होता है बट उनको पता है मेरे को मेरा जपा करना है तो दे विल रिमूव सम टाइम समवेयर एंड दे विल फिनिश देयर दैट आई डू सो दे आइडेंटिफाई एंड दे डू दे मैनेज नाइस यस जैसे जैसे सब्जेक्ट में कोई हम लोग पता चलेगा ना कौन से लेवल पे वो है तो जैसे जनरल टेस्ट होते हैं वैसे ही होते हैं यहाँ पे पेपर्स वही एग्जामिनेशन लिखना वगैरह कुछ श्लोका रिसाइटेड वो ओरल रहेगी कुछ ओरल रहते हैं कुछ रिटर्न रहते हैं इंग्लिश में ऐसे लिखने का रहता है बच्चे डिपेंडिंग कौन से लेवल पे वो ऐसे लिखेंगे छोटे बच्चे को बोलेंगे 10 सेंटेंस लिखो एक ऑब्जेक्ट में तो एग्जाम था एक मैंने आपको बताया जो एसएससी करते हैं वो तो फिर वहाँ पे परस्यू करते हैं जो यहाँ पे रिटर्न होते हैं इट इज़ वेरी high chances that they want to relate and be in the mission directly involved in some of the other services. इसी कारण से वो लोग रिटेन होते हैं माता पिता भी उसमें उतने एग्रीमेंट कर देते हैं तो जनरली देखो जैसे यहाँ पे हमारे एक को डायरेक्टर है ही इज एन एक्स स्टूडेंट ऑफ स्कूल आप यहाँ के जो प्रिंसिपल है ही इज ऑल्सो एन एक्स स्टूडेंट ऑफ स्कूल हमारे डीटी डिपार्टमेंट में एक वेरी I would say, what we say, Krishna Chaitanya Prabhu. He's also an ex-student of Gurukul. He is also very actively involved in DT. अलग अलग टेम्पल्स की अगर हम बात करेंगे तो कुछ डिवोटीज है जो वापस उनकी कंट्रीज के जो सराउंडिंग टेम्पल है जहाँ पे भी है वहाँ पे वो लोग प्रीच कर रहे हैं तो ऐसा सब जगह पे वॉट एवर देयर लाइफ दे डू नहीं see it is more of trying to chant nicely. That's the fundamental thing. And then they do 2, some may do 4. दूसरा बच्चा अगर 4 कर रहा है तो छोटे को बोलेंगे try and do improve it. But it is more of his chanting quality should improve rather than quantity. But जिसका दीक्षा हो गया ये हो गया ग्रामीण एजुकेशन फॉलो कर दिस एक्चुअली ये जो कैंपस है 2003 में स्टार्ट हुआ और गुरुकुल इस्टेब्लिश हुआ था 84 में यहाँ पुराना कैंपस है गौशाला के पास वहाँ पे पहले ये वाला 2003 में अरे यहाँ पे 20 So we have given him, of course, under assistance and guidance. There is one teacher who helps him to learn something that he is trying to make in a computer. We have currently students from 23 countries. Now imagine, 60 students maybe 23 अलग-अलग countries के लोग. So I won't be judgmental, but at the same time, if you don't shortlist, then we have to understand कि हमारे भी ये उसको घर पे शाम को भेजना है. Now understand this principle also. Parents are natural leaders for the child. जो माता पिता करेंगे ना बच्चे बाय डिफॉल्ट जल्दी अडॉप्ट करते हैं. ये हम सब ने किया. अगर माता पिता भी वही प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी सिद्धांत में उतना क्लोजली और बच्चा वो ऑब्जर्व करता है तो उसके लिए उतना बेनिफिशियल है और इजीली अडॉप्ट कर सकता है. तो ये एक वजह भी है कि पेरेंट्स के साथ बच्चे लोग शाम को जाते हैं थोड़ा टाइम लेते हैं. अगर मैं हाइपोथेटिकली मेरा बच्चा गुरुकुल से आता है और मैं जाके शाम को टीवी चालू करके मेरा पैर लंबा करके देखता हूँ आई कैन एक्सपेक्ट हिम टू ग्रो इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. मैं खुद अलग कर रहा हूँ वो खुद अलग कर. बट अगर मैं कुछ मेरा रिलेटेड कर रहा हूँ एंड आई ऑल्सो देन स्पेंड टाइम विद हिम say some philosophy or story or read Krishna book or something, so he will identify, my parents used to do this. प्रभुपाद का लीला हम सबने पढ़ा. वो क्या बोलता उनका फादर का उन्होंने तुरंत एग्जाम my father used to do this he explained it nicely. So parents are natural leaders. So that's the reason one of the criteria should be, I think, and it's helpful.
it will help you. And of course, there are Gurukuls throughout the world. It's not that this is the only Gurukul. How their parents manage their work. See, that is something that we all need to learn, that Krishna will take care of things. I'm not saying that आप सब ताला मार के तुरंत आ जाओ, but have that faith that even if I fall down, Krishna will take charge. Prabhupada will be there, family is there, devotees are there, something will happen. But we should have that faith. और वो रिस्क कहीं ना कहीं हम सबको भक्ति में लेना पड़ता है. अगर वो रिस्क नहीं लेंगे तो हम आगे वो हर्डल कभी क्रॉस नहीं कर पाएंगे. तो इनफैक्ट आई वुड से कि आई पर्सनली जब मैं पहली बार मायापुर आया था, आई वाज एनकरेज टू सी these young devotees from different countries chanting Sanskrit shlokas in the temple only. Abhi band ho gaya because of COVID. But these children used to be in Mangala Aarti that time. And they used to chant and explain the verse. Imagine kids from different nationality, koi German hai, koi Russian hai, koi kahan se, and they are chanting our slokas. So we should be encouraged and motivated that if they can take so much of this, then where are we? नहीं प्रभु, I look after certain aspects of Gurukul, of little bit of administration and some things of fundraising, helping Gurukul. सर अभी जैसे अपना फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो सर आप तक टीच करते हैं कि नहीं? We see, एक होता है ऑडियो विजुअल लर्निंग भी होता है. So through audio video there is lot of things that we show them. Of course chemistry lab setup नहीं करते, but through audio video they learn lot of things which are generally. but जैसे मैंने कहा वो सब आता है 12th के बाद मेजर फोकस. तो जिसको अगर उसमें इंटरेस्ट है देन दे विल ऑटोमेटिकली स्विच बाय सेकंड अपना लेवल एजुकेशन खत्म, सेकंड लेवल खत्म होने के बाद देन स्विच टू एसएससी एंड देन कंटिन्यू. पर यहाँ पे जो रहेंगे वो जैसे मैंने आपको बताया टिल भक्ति वैभव दे दे आर क्वालिफाइड. अभी कैसा जहाँ से घर पे जाएंगे, घर के जो आजू बाजू में जो बच्चे रहेंगे वो लोग किसी और स्कूल में पढ़ते रहेंगे, तो वहाँ से किसी बड़ा इंफेक्शन होएगा, तो लोग बोलेंगे हमको ये सिखाते हमको ये सिखाते. ये चीज़ होती है. इसीलिए मैंने आपको बताया कि माता पिता बहुत नेचुरल लीडर्स हैं. तो ये माता पिता विल हैव अ मेजर रोल इन देम. लेट अस पुट इन अ डिफरेंट वे. आपके पड़ोसी में कोई कुछ गलत काम कर रहा है, गलत इन द सेंस लेट अस से ब्रेकिंग वन ऑफ द 4 प्रिंसिपल, मीट ईटिंग कर रहा है, और उनके घर पे बहुत कैजुअल है, घर सब अच्छा है, बट एज अ पेरेंट यू विल, आप डिवोटी नहीं हो, बट आप आप इस फैमिली से जहाँ पे मीट ईटिंग इतना एनकरेज नहीं होता, so you will try and make sure that your son does not eat at that place. You'll act as a wall in some or the other way. कि भाई तू खेल उसके साथ, घर पे तेरे को उसके नहीं जाना खाना खाने. एग्री? आप कॉशियसली प्रिकॉशन लोगे. उसी तरह से भक्ति में भी ऐसे है. जब हम हमारे अभी एक्सटेंडेड फैमिली से मिलते हैं, नॉट एवरीबडी इज अ डिवोटी, बट when we go there, so we make sure that what is the limitation that he can be with the others, he can how much time he can spend with others. और we already जैसे जैसे बच्चे मैच्योर होते हैं, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट आर द चैलेंजेस, बिकॉज क्लासेस के थ्रू, पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू दे लर्न एवरीथिंग. सो दे ऑल्सो अंडरस्टैंड. एंड फादर्स, पेरेंट्स, टीचर्स ऑल एक्सप्लेन व्हाट आर द चैलेंजेस दैट माइट कम अक्रॉस, एंड दे नो हाउ टू टैकल इट इवेंचुअली स्टेप बाय स्टेप. जैसे छोटे बच्चे को थोड़ा संभालना पड़ता है, बड़े बच्चे दे नो. एंड जैसे मैंने कहा दिस पर्टिकुलर, जैसे अभी आप देख रहे हो द कपड़ा देते हुए योगी पता आपने कभी देखा है, अभी तो गर्मी है, जनरली दे वेयर योगी पता एंड धोती. तो इट इज़ नॉट जस्ट कि गुरुकुल का यूनिफॉर्म. आप बॉम्बे में उसको मॉल में लेके जाओ, एयरपोर्ट पे लेके जाओ, एवरीवेयर जहाँ पे भी लेके जाओ, यही कपड़े में घूम जाते हैं. सो इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लाइफ. पार्ट बना के रखोगे देन देयर विल ऑलवेज बी स्विच ओवर. वे ऑफ लाइफ है तो ही विल ऑल्सो लर्न. जैसे हम डिवोटीज हैं, हम जब ट्रैवल करते हैं तो हम बिंदास जाते हैं, धोती में जाएंगे, देख लेंगे, हो गया. हमने भी जीन्स भी बहुत पहने थे, ऐसा नहीं है. We may feel awkward, but ultimately we have to learn to express and take boldly whatever the right thing is. So we have to give that strength to our child to face the reality and accept that this is right. I know I'm doing it for Krishna, and I know what is the purpose of it. Just focus on that. ये होगा, challenges आते हैं, but that's a part of material. It will, yes. You cannot expect, कि ये पूरा वर्ल्ड इसी में समेटा रहेगा. हम सब ने हम सब बुरी आदत किधर न किधर कर चुके हैं या करते रहेंगे, आई डोंट नो, बट आई कैन गारंटी दैट 99.99 लोगों ने माँ बाप से नहीं सीखा है, दुनिया ने सीखा है. सो वर्ल्ड विल गिव इट्स एक्सपोजर. एज अ पेरेंट्स, एज टीचर्स और वट एवर, we have a responsibility, and we make sure that the child is guided in proper way, that whenever there is a situation he knows what to do and what not to do. ये इंटेलिजेंस उसको देकर, that's the best we can do.
प्रोफेसर, तो आप लोग नेक्स्ट टाइम भी आएंगे और कुछ आपने सीखा और कुछ याद रख के लेके जाएंगे। ये साधारण स्कूल नहीं है, बोले सादा दिखता है बहुत, बट यहाँ का जो कॉन्शियसनेस है इट इज एक्सट्रीमली प्योर, बिकॉज बच्चे लोग बहुत इनोसेंट है। देयर इज नथिंग दैट दे आर कि तू गोरा है या काला है या इधर से या उधर से, दे आर वेरी वेरी कनेक्टेड विद। उस कारण से इनमें जो ब्रदरहुड जो हम रियल बोलते हैं ना, वो इनमें यूनिटी डाइवर्सिटी ये सब बोलने की बात है, पर यहाँ पे एक्चुअली होता है। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। हरे तो हम प्रभु जी का यहाँ पे धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने उनका बिजू शेड्यूल से हमको इतना टाइम देके वैल्यूएबल जो भी थिंग्स है, जो भी चीज़ें हैं गुरुकुल के बारे में सभी बताया है। एक्चुअली उन्होंने मेरे को बताया था कि आप कल आओ, बट मैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि प्रभु जी हमारा शेड्यूल कल का टाइट है, आज हमको थोड़ा टाइम दे दो आपका। उन्होंने एक रिक्वेस्ट मान के हम लोग को टाइम दिया। सो 3 बार उनका हरि बोल करके हम धन्यवाद देना चाहेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू सो मच।